morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we are starting a new unit, unit second, that is analysis of continuous time signals. Okay, and that continuous time signals are basically depends on linear time invariant systems. Okay, depends on linear time invariant system. So firstly we have to discuss with what is LTI systems. Okay, LTI means what? LTI means linear time invariant system. Those systems which are vary with time, that is time variant system, and those systems which are not vary with time, that is time invariant system. So nowadays we are using the linear time invariant systems. Okay, so wait for a minute. Okay, so analysis of continuous time signal. So you all are know about the continuous time signals. What is continuous time signals? What is continuous time signals? Vary with every instant of time. Yes. The signals that vary every instant of time, that is known as continuous time signals. जब हम continuous time signals की बात करते हैं तो हम बेसिक एक equations की बात करते हैं ना. ये जो equation है that is depend on यहाँ पे आपको दिख रहा है हर जगह क्या लिखा हुआ है? d to the power n minus 1 d by t. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम continuous time signals के analysis करते हैं तो in that analysis we have using or we develop the mathematical description for continuous time system, है ना? It is an ordinary linear differential equation with constant coefficient. ठीक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं. जिस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं इस फॉर्म में, दैट इज आवर फॉर्म इज व्हाट? an d to the power n by t dtn plus an minus 1 d to the power n minus 1 by t by dtn minus 1. Then and so on a1 d by t by dt plus a0 by t. ठीक है, सेम फॉर इनपुट साइड. ठीक है, dm d to the power m xt dt m plus dm minus 1 dm minus 1 xt by dt m minus 1 plus d1 dxt by dt plus d0 xt. Is it clear? है ना? That is a basic form. That is a basic form for solving the differential equations only. Okay? Nothing else. नहीं, और कुछ नहीं है. इससे पर सिर्फ क्या है? एक फॉर्म है इक्वेशन. ठीक? मतलब अगर हमें इक्वेशन गिवन होगी तो वो किस फॉर्म में गिवन होगी? वो इस फॉर्म में गिवन होगी. अब इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ कैसे गिवन होगी. अब यहाँ देखो, यहाँ हमें क्वेश्चन ले रहे हैं. इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? An LTIC system, मतलब linear time invariant continuous time system, is specified by equation d square by t by dt square plus 5d by t by dt plus 6 by t. ठीक है, that is similar form of this equation. It is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is same form for that equation. ठीक है, इसलिए हमें से क्या करना है? ये हमारी इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है जिसके बेस हमें क्या करना है? जिसपे बेस हमें क्या करना है? ये सारी चीजें फाइंड करनी है. ठीक है, और आउटपुट साइड देखोगे तो आपको सब इनपुट साइड देखोगे तो समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? dxt by dt plus 4xt. है ना? क्या लिखा हुआ है? dxt by dt plus 4xt. और यहाँ पे भी क्या है इक्वेशन का फॉर्म? इक्वेशन का फॉर्म यही है dm d to the power m xt by dtm and so on. कहाँ तक? 0. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इक्वेशन का फॉर्म. अब जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अब एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस किस फॉर्म में करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, है ना? जब भी हम सॉल्यूशन या एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस किस फॉर्म में करेंगे?
ऑब्वियसली किसी मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, तो जब मैथमेटिकल होगा तो ऑब्वियसली उसका वो सोल्यूशन भी होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so the solution of differential equation consists of two parts, है ना? जो solution होता है वो दो पार्ट में कंसिस्ट होता है. फर्स्ट पार्ट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, है ना? और ये जो रिस्पॉन्सेज हैं मेनली ये रिस्पॉन्सेज किससे मिलके बने होते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन से. मतलब हम फाइंड किसके थ्रू करेंगे? तो हम फाइंड करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के थ्रू. जैसे हमें क्या दिख रहा है, हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें? नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं, फोर्स रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं. जब हम दोनों रिस्पॉन्स को ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या गिवन होता है? टोटल रिस्पॉन्स गिवन होता है. और ये जो टोटल रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है? ये एनालिसिस होती है किसी भी सिग्नल की, है ना? क्या होता है? ये एनालिसिस होता है, एनालिसिस होती है किसी भी सिस्टम की या सिग्नल की. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि हमें एनालिसिस में मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के एनालिसिस में एटलीस्ट एक्चुअली पढ़ना क्या है ना? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सारे सिग्नल्स की एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो जो सारे सिग्नल्स होंगे दैट ऑल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स. ठीक है, जो सारे फॉर्म होंगे वो मतलब जो सारे सिग्नल्स होंगे किस फॉर्म में होंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे. ठीक है, और कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, लेकिन वो सारे सिग्नल्स जो होंगे वो क्या होंगे? LTI होंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिग्नल्स होंगे. ये चीज क्लियर हुई? दैट इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so you all are noted down. We have to start with the example, है ना? So write down the question. Write down the question. An LTI continuous system, LTI continuous system specified by equation given दिख रही है आप लोगों को? d square by t by dt square plus 5t by t by dt plus 6yt equal to dxt by dt plus 4xt. ठीक है, and the input xt is what? The input xt equal to e to the power minus t ut, e to the power minus t ut. Okay, so find natural response for the initial condition, natural response for the initial condition. इनिशियल कंडीशन क्या है? y0 प्लस इक्वल टू 3, है ना? हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसमें इनिशियल कंडीशन में क्या बोली है कि जब इनिशियल कंडीशन में हमारा सिग्नल होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है? y0 प्लस इक्वल टू 3 एंड dy0 प्लस बाई dt इक्वल टू 0. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज फोर्स रिस्पॉन्स and third one is total response. Clear? Yes, ma'am. Okay, so we have to start the solution.
ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्ट कीजिए। लिखो इसमें द नेचुरल रिस्पांस, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे आप, नेचुरल रिस्पांस, है ना। तो द नेचुरल रिस्पांस कैन बी obtained by equating the input terms to 0, ठीक है। इनपुट टर्म्स to 0 means what? We have to return this v square by d by dt square plus 5 d by t by dt plus 6 by t equal to 0, ठीक है, equal to 0, है ना। दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म था, दैट इज आवर इक्वेशन 1, ओके, ठीक है। देखो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन can be obtained by substituting y by c e lambda t, है ना, c e to the power lambda t, ओके, lambda t in equation 2 by h t equal to c e lambda t in equation second, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको क्या करना है, देखो मतलब हर जगह क्या कर देना है, इसकी जगह क्या पुट जाएगा, लैम्डा पुट जाएगा। कैसे, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे d स्क्वायर बाय dt नहीं हो रहा है, हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज फेंक दो। इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करो, वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो वैल्यू क्या होगी, लैम्डा कॉमन लिया, क्या हो गया लैम्डा प्लस 2, है ना, और यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 2 -2 minus 3, है ना। तो हमें वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू -3, है ना। तो दो वैल्यूज आई हमारे पास, कौन सी, फर्स्ट वन इज लैम्डा 1 इक्वल टू -2 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू -3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ तक आया सबको समझ में, यस मैम, Yes, ma'am. है ना। सो इन दैट केस है ना, ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन में। तो द होमोजेनियस इक्वेशन इज
the homogeneous equation is YH t equal to C1 e to the power minus 2 lambda plus C2 e to the power minus 3 lambda. Sorry, lambda is 3t. ठीक है, C1 e to the power minus 2t और C2 e to the power minus 3t. That is our equation 3. That is our equation 3. ठीक है, अब इसी का अगर मैं t के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर इसी के प्लेस पे मैं t के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगी? C1 plus C2. ये चीज क्लियर हुई? अगर t के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 0 पुट कर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? C1 plus C2. क्लियर हुआ? सब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि e to the power 0 equal to क्या होता है? 1 है ना? e to the power 0 equal to क्या होता है? 1 होता है। इस इक्वेशन पर क्या होगी? y h 0 equal to c1 plus c2. That is our equation 4. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब हम एक काम करते हैं, अब एक ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ना, इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? dy ht by dt है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगी इक्वेशन? माइनस 2 c1 e to the power minus 2t। होगी कि नहीं? इक्वेशन होगी या नहीं होगी? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? और नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी? माइनस 3, 3c2 e raised to the power minus 3t. ठीक है, ये हुई है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें? ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन में हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? yh Minus 2c. है ना, माइनस 2c1 और माइनस 3c2 है ना। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2c1 प्लस 3c2 इक्वल टू दिस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? दैट इज आवर इक्वेशन 5। दैट इज आवर इक्वेशन 5 Yes, ma'am. है ना, दैट इज आवर इक्वेशन 5। ठीक है, इसको रख कर दो। Yes, ma'am. रब कर दो इसे। Yes, ma'am. So, from the initial condition, from the initial condition क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास कंडीशंस गिवन है y0 plus equal to 3 and dy 0 plus y dt equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो ये डेटा तो गिवन हो गया हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 6 और 7 लिख देते हैं। दैट इज आवर इक्वेशन 6 and 7। So compare equation 4 and 6 है ना। इक्वेशन कंपेयर करो, इक्वेशन को हमने 4 और 6 इक्वेशन को कंपेयर किया तो क्या बन जाएगा? वो देखो ये इक्वेशन है 4 है ना, और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? इक्वेशन 6 के लिए क्या हो जाएगा? c1 plus c2 equal to
C1 plus C2 equal to 3. Plus 2, 3. है ना? और इस इक्वेशन को 5 इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं हम, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 2C1 plus 3C2 equal to 0. ये हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास C1 और C2 की वैल्यू आएगी, है ना? अब Yes, ma'am. सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास C1 इक्वल टू आएगा 9, है ना? एंड C2 इक्वल टू आएगा -6. ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी. अब इन वैल्यूज से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं हमारी इक्वेशन, नेचुरल रिस्पांस की इक्वेशन. तो नेचुरल रिस्पांस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इन दैट कंडीशन, यहां लिख दूं क्या? ये Yes, ma'am. ये सॉल्व हो जाएगा सबसे, ये करो सॉल्व, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी ना, Yes, ma'am. हो गई elimination method. है ना? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करो. इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी, और C2 में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक, बोलोगे कुछ आप? Yes, ma'am. आ गए है. आगे Yes, बढ़िए ma'am. आप. ओके, Yes. तो आवर नेचुरल रिस्पांस इज व्हाट, क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दिख रहा है. चलो हमारे पास वी हैव ओनली 10 मिनट्स. देखो यहाँ दिख रहा है ना ये, है ना? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 9 Yes, ma'am. e to the power -2t प्लस, है ना? प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा ये -6 e to the power -3t, है ना? तो ये क्या होगा हमारी इक्वेशन नंबर 8. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, ठीक है, ये चीज वही क्लियर सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, नेचुरल रिस्पांस. अब हम बात करते हैं किसकी, फोर्स रिस्पांस की, है ना? तो जो फोर्स रिस्पांस की बात करते हैं, तो फोर्स रिस्पांस, तो फोर्स रिस्पांस में हमें क्या करना पड़ता है, the homogeneous solution is given by homogeneous solution given for type of homogeneous solution, that is C1 e to the power -2t plus C2 e to the power -3t. ये था हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन. Yes, ma'am. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक इनपुट गिवन, फॉर इनपुट xt इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में इनपुट गिवन है, फॉर इनपुट xt इक्वल टू e to the power -t, ये इनपुट गिवन है ना? सो इन दैट केस the particular solution is, है ना? इनपुट रिस्पांस है तो फोर्स रिस्पांस में सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y p t equal to k e to the power -t, k e to the power -t, that is equation 10, है ना? From which हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो फ्रॉम दैट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना? डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, y pt को डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा dy pt by dt, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा k minus k e to the power -t हो जाएगा. इसको डिफरेंशिएट किया, Yes, ma'am. है ना? इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा d square
y pt by dt square equal to क्या हो जाएगा ये k e to the power minus t A E plus. फिर से माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया प्लस हो गया Yes, ma'am. है ना तो हम ये कर इसलिए रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है इन दैट इक्वेशन क्वेश्चन की इक्वेशन देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारे पास इक्वेशन है d स्क्वायर Double differentiation. 5t by dt square plus 5 d by t by dt plus 6 by t है ना equal to Yes, ma'am. dxt by dt plus 4xt ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है ना Yes, अब हमें ma'am. क्या करना है जो इक्वेशन गिवन है ना इस इक्वेशन में जहां पे भी y t लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या पुट कर देंगे y pt लिख देंगे ये चीज आ रही समझ में उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे उस इक्वेशन में हम लिख देंगे इक्वेशन क्या है हमारे पास d स्क्वायर y t by dt है तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया y pt by dt दिख रहा है प्लस 5 d by t by dt है ना तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया 5 d by pt by dt ठीक और फिर क्या है प्लस 6 by pt इक्वल टू व्हाट इनपुट इक्वेशन क्या है इनपुट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है dxt by dt plus 4x ठीक है ये चीज आ रही समझ में दैट थिंग इज क्लियर Yes, ma'am. है ना तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी जो डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन किया है इसकी वैल्यूज हम पुट कर दो क्या हो जाएगा ये दैट इज k e to the power minus t minus 5k e to the power minus t plus Ma'am. yes Yes, ma'am. Okay. plus 6k e to the power minus t ठीक है इक्वल टू dxt by dt क्या होगा बताओ dxt by dt क्या होगा यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है बेटा xt की वैल्यू क्या गिवन है e to the power minus t है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e to the power minus t है इसको डबल इसको सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा Minus e raised to the power minus t. e to the power minus t और 4xt का क्या हो जाएगा प्लस 4 e to the power 4 e raised to the power minus t. ठीक है इससे आप k की वैल्यू फाइंड कर लो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर लो k की वैल्यू फाइंड कर लो हो जाएगी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि नहीं होगी देखो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है यहां से क्या करो k कॉमन लो तो वैल्यू क्या बचेगी e to the power minus t minus 5k e to the power minus t sorry k e to the power minus t plus 6 e to the power minus t equal to 3 e to the power minus t और e to the power minus t को भी कॉमन ले लो है ना e to the power minus t को भी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा e to the power minus t तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा Yes, ma'am. है ना तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 2k इक्वल 3 टू by 2. है ना तो k इक्वल टू क्या हो गया k इक्वल टू क्या हो गया 3 by 2. 1.5 3 by 2. है ना 1.5 ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू k की वैल्यू इस K की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट कर देना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट कर देना मतलब y p t equal to 1.5 e to the power minus t ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है मैम ये है फाइनल सॉल्यूशन नहीं ये नहीं है अभी हमें निकालना है द फोर्स रिस्पांस इज सम ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आप क्या करो जो फोर्स रिस्पांस निकालना है ना हमने y फोर्स रिस्पांस क्या था हमारे पास c1 e to the power minus 2t plus c2 e to the power minus 3t plus 1.5 e to the power
Yes, ma'am. That is our equation number 13. ठीक, अब क्या करना है, इसमें t के प्लेस पे 0 पुट करो तो वैल्यू आएगी आपके पास y 0 प्लस इक्वल टू 0 पुट करो तो वैल्यू क्या आएगी c1 प्लस c2 प्लस 1.5, ये वैल्यू आएगी, है ना। ऐसे ही इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करो, मतलब सिंगल डिफरेंशिएट करो, सॉरी सिंगल डिफरेंशिएट करो और उसमें 0 पुट करो। आई बात समझ में, मतलब कि क्या हो जाएगा -2 c1 e टू पावर -3 प्लस -3 c2 e टू पावर -3t, ठीक है, -1.5 e टू पावर -t, ठीक है। जब इसमें 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2c1 3c2 -1.5, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करोगे तो c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड होगी, है ना। हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, c1 और c2 की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, सुनो यहाँ पे सब, c1 और c2 की जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यूज को हमें ओवरऑल इक्वेशन में पुट करना है,